Hello everybody, here is your EVS subject teacher Dharmendra sir. Dear students, welcome back to once again my YouTube channel Achievers Academy. Students, here I am discussing chapter number 16. Previously I have just sent two videos about this chapter, part first and part second. Today I will discuss about part 3, chapter number 16, who will do this work. Okay students, in previous video I also already discussed about exercise question answer. So here in this video I will continue about the exercise question answers. So students, in this chapter let's see the first question of the fill in the blanks with suitable words. Students, fill in the blanks with suitable words is given. Words is firstly Gujarati, second here money, and third is Sabarmati, and fourth is toilets and status. These words you must be chosen the suitable words given the sentences. Okay students, here is the Gujarati, money, Sabarmati, toilets and status. So let's see the questions. First sentence is here, Narayan was staying in ashram. Students, I hope all of you read the chapters and you must be understood about this. Who was Narayan? Narayan was a person who was staying in the ashram of Gandhiji. Here you must be right. What? गांधी जी आश्रम में रहते थे और गांधी जी का आश्रम कौन था? What is the गांधी जी आश्रम? साबरमती आश्रम. Dear students, नारायण was staying in ashram. नारायण किस आश्रम में स्टे करते थे? You all of you read this chapter. You must be find out. Narayan was staying at Sabarmati ashram. In Sabarmati ashram. Then you must be write down Sabarmati. Okay students, I hope you understood. Narayan was staying in Sabarmati ashram. Let's see second. People do different kind of job to earn. People do different kind of job to earn. लोग different विभिन्न प्रकार के जॉब को करते हैं. People do different kind of job. लोग भिन्न प्रकार के जॉब को करते हैं to earn. Here money. Money is the suitable words here. People do different kind of job to earn money. लोग अलग अलग प्रकार के जॉब करते हैं किस लिए? मनी को अर्न करने के लिए. सब सो डिफरेंट काइंड्स के जॉब को लोग चूज करते हैं बिकॉज ऑफ द टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए. जो डॉक्टर है वो डिफरेंट उनका जॉब है, टीचर है उनका अलग जॉब है, इसके बाद इंजीनियर है वो अलग जॉब है. different kinds of job people just want to choose. People do different kind of job to earn money. Let's see. Then here is the answer, money. Okay, let's see third. School child from Hitel community are forced to clean. When you read the chapters then you can understood about this. हीतल कम्युनिटी के लोग जो है, बच्चे भी ये मानते थे कि हीतल कम्युनिटी के लोग ही क्लीनिंग का काम करते हैं. सो स्कूल चाइल्ड आर फोर्स टू क्लीन. उसको फोर्स किया जाता था क्लीन करने के लिए. क्या? टॉयलेट्स. स्कूल चाइल्ड, हियर इज द सेंटेंस. स्कूल चाइल्ड, स्कूल का जो बच्चा था
फ्रॉम हीथल कम्युनिटी, जो कि हीथल कम्युनिटी से था, आर फोर्स टू क्लीन, उसे लोग फोर्स करते थे टू क्लीन करने के लिए टॉयलेट्स। देन बिकॉज टॉयलेट्स, स्कूल का जो बच्चा था फ्रॉम हीथल कम्युनिटी, जो बिलोंग करता था हीथल कम्युनिटी से, आर फोर्स, वो फोर्स किया जाता था टू क्लीन द टॉयलेट्स, बिकॉज इन दैट प्रीवियस टाइम द पर्सन्स हैव माइंड सेट, मेक द माइंड सेट, देन ए पर्टिकुलर कम्युनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग जॉब। क्लीनिंग जॉब के लिए एक विशेष प्रकार की कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वही इस चीज़ को करते हैं। तो वहाँ पे हीथल कम्युनिटी के जो लोग थे वो मुख्यतः जो है सफाई का काम करते थे। सो द चाइल्ड वाज फोर्स्ड, चाइल्ड को फोर्स लोग करते थे। स्कूल चाइल्ड फ्रॉम हीथल कम्युनिटी आर फोर्स टू यूज टू क्लीन, फोर्स टू क्लीन टॉयलेट्स, टॉयलेट्स को सफाई करने के लिए। नेक्स्ट फोर्थ इज Gandhi ji used to believe that every person should give equal. Gandhi ji used to believe that every person should give equal. The Hindi meaning of this, Gandhi ji used to believe, गांधी जी विश्वास करते थे that every person should give, हर लोगों को, every person should give equal, क्या, what? You just find out. गुजराती, मनी, साबरमती, टॉयलेट, स्टेटस। स्टेटस इज द राइट हियर। स्टेटस मीन्स प्रतिष्ठा, हर लोगों को एक जैसी प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। ओके, देन हियर इट विल फील्ड हियर स्टेटस। ओके, गांधी जी यूज्ड टू बिलीव, गांधी जी का ये विश्वास था कि एवरी पर्सन शुड गिव, हर लोगों को, ये उनकी पर्सनल सोच थी कि हर लोगों को एवरी पर्सन शुड गिव इक्वल स्टेटस, हर लोगों का एक समान इक्वल स्टेटस होना चाहिए। गांधी जी यूज्ड टू बिलीव दैट एवरी पर्सन शुड गिव इक्वल स्टेटस, हर लोगों को इक्वल स्टेटस, हर लोगों को एक समान जो है प्रतिष्ठा या रिस्पेक्ट देनी चाहिए। Here गांधी जी यूज्ड टू बिलीव दैट एवरी पर्सन शुड गिव इक्वल स्टेटस, हर लोगों को हर पर्सन्स को एक समान रिस्पेक्ट देना चाहिए। इवन दे आर डूइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब, देन देयर इज नो मैटर, वी शुड गिव द इक्वल रिक्वेस्ट ऑफ द ऑल पर्सन्स, हमें सारे लोगों को एक समान रिस्पेक्ट देना चाहिए। लेट्स सी नंबर 5, गांधी जी फेवरेट सॉन्ग, गांधी जी का जो फेवरेट सॉन्ग था, जो भजन वो गाते थे, वो किस में था, किस भाषा में वो भजन गाते थे? गांधी जी फेवरेट सॉन्ग भजन इन, गांधी जी का फेवरेट भजन जो था, सॉन्ग जो गीत था, वो किस में था? देन हियर इज द आंसर, गुजराती, वो जो भजन था वो गुजराती में था। देन यू मस्ट बी फील हियर गुजराती। अंडरस्टूड? देन फर्स्ट इज नारायण वाज स्टेइंग इन साबरमती आश्रम, देन दिस इज योर आंसर, साबरमती is the right. And second one, people do different kind of job to earn money, here is the answer, money. Okay students, and third is school child from Heathel community are forced to clean toilets. गांधी जी used to believe that every person should give equal status, गांधी जी ये विश्वास करते थे कि लोगों को
हर एक व्यक्ति को एक समान रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इक्वल स्टेटस का दर्जा देना चाहिए। फिफ्थ इज गांधी जी का जो फेवरेट सॉन्ग था, जो प्रिय भजन था, वो किस भाषा में थी? गुजराती। लेट्स सी व्हाट वाज हिज फेवरेट सॉन्ग। उनका फेवरेट सॉन्ग क्या था? आइए हम लोग देखते हैं। हियर इज द वैष्णव जन तो तेड़े कहिए, जो पीड़ पराई जाड़े रे। वैष्णव जन तो तेड़े कहिए, जो पीड़ पराई जाड़े रे। पर दुखे अपमान सहे, जे मन अभिमान न आड़े रे। फिर से देखते हैं एक बार। वैष्णव जन तो तेड़े कहिए, जो पीड़ पराई जाड़े रे। पर दुखे अपमान सहे, जो मन अभिमान ना आड़े रे। इज इट क्लियर? ये इनका जो है फेवरेट सॉन्ग था गांधी जी का। आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट बी अंडरस्टूड वॉट एवर दिस फिल इन द ब्लैंक्स। गुजराती मनी साबरमती टॉयलेट स्टेटस वाज द वर्ड्स एंड you must be fill here the proper words. Then I discuss here. First is goes to the Sabarmati, second is money, third is toilets, fourth is status, and fifth is Gujarati. Okay students, so let's see another questions. Students, let's see here another question. Write T for true and T for true, F for false against the following statements. Here is the question students. Write T for true, F for false against the following statements. Whatever is the given statements, you must be put whatever the true or false. Let's see the sentences. Here is first. Gandhi ji used to say that every person should do every kind of work. The meaning of this sentence, every person should, हर लोगों को, प्रत्येक लोगों को, every person should do, हर लोगों को हर प्रकार का काम करना चाहिए। गांधी जी यूज्ड टू से, गांधी जी कहा करते थे that every person should do every kind of work, हर लोगों को, प्रत्येक लोगों को डिफरेंट प्रत्येक कार्य करना चाहिए। Is it clear? Then this is the true or false. Then this statement is true. गांधी जी इस तरह के स्टेटमेंट्स देते थे, एवरी पर्सन शुड डू एवरी काइंड ऑफ वर्क, हर लोगों को, प्रत्येक लोगों को अलग अलग प्रकार के प्रत्येक काम करने चाहिए। गांधी जी यूज्ड टू से दैट एवरी पर्सन डू एवरी काइंड ऑफ वर्क. So let's see. Barber was happily ready to cut Bhim's hair. If you read the chapters, then you can easily see in this particular chapters, chapter number 60. Here is the statements. Barber was happily ready to cut Bhim's hair. क्या वो खुशी खुशी भीम के हेयर को कट करने के लिए रेडी हो गया था, तैयार हो गया था? देन व्हाट इज हियर? इफ यू रीड द चैप्टर्स, देन यू कैन अंडरस्टूड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. ऑब्वियसली if you read this chapter, then there will clearly mention
दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। हियर राइट डाउन फॉल्स। ओके, बार्बर जो है हैप्पीली जो है रेडी नहीं हुआ था भीम के हेयर को कट करने के लिए, बिकॉज ऑफ, क्यों, व्हाट वाज द रीजन? बार्बर्स माइंड सेट वॉज दैट ही इज द लोअर कम्युनिटीज पर्सन्स, आई वुड नॉट कट हिज हेयर। ये लोअर कम्युनिटी के लोग हैं, इसलिए मैं इनके हेयर्स को कट नहीं करूंगा। वो बिकॉज ऑफ द देयर वेयर द माइंड सेट ऑफ अनटचेबिलिटी, अछूत जैसी घातक जो बीमारी थी समाज में, वो दैट वाज द पर्टिकुलर रीजन। बार्बर वाज हैप्पीली रेडी टू कट भीम्स हेयर, दैट वाज टोटली फॉल्स। ये जो है फॉल्स सा स्टेटमेंट्स, ये हैप्पीली वो रेडी नहीं हुआ बल्कि उनको इनकार कर दिया। भीमराव अम्बेडकर को अनटचेबल मानता था, अछूत मानता था, इसलिए वो हेयर कट नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट ईयर थर्ड, इट इज आवर ड्यूटी टू कीप आवर हाउस एंड सराउंडिंग्स क्लीन। क्या ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने घरों को और सराउंडिंग्स अगल बगल जहां हम रहते हैं उस प्लेस को साफ रखें? देन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। देन you must be say this is the true statements. Here write down true. Okay, next see, let's see 4 number, no work is inferior. This statement is true or false? No work is inferior. कोई भी काम inferior नहीं होता है, छोटा नहीं होता है, और उसकी स्टेटस, उसका स्टेटस भी छोटा नहीं होता है। हर वर्ग की एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, इसलिए जो है कोई भी काम इन्फीरियर नहीं होता है, छोटा नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट्स है ये बिल्कुल सही है। नो वर्क इज़ इन्फीरियर, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। देन हियर इज़ द ट्रू, यू विल राइट हियर ट्रू। लास्ट वन, हियर इज़ 5th number, we should treat our helpers with kindness. We should treat our helpers with kindness. हमें अपने हेल्पर्स जो सहयोगी हैं, जो हमारे सहयोगी हम काम करते हैं, या हम किसी वर्कर्स को हायर करते हैं अपने काम के लिए, या हम किसी अच्छे पोस्ट पे हैं, वो हमारे जो सहयोगी हैं जो जूनियर पोस्ट पे हैं, और कोई जो है उसका बॉस है, तो ऐसे जो सहयोगी हैं हमारे निचले लेवल पे, उनको जो है उनके साथ कैसा हमें व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो वर्कर्स हों, चाहे हेल्पर्स हों, चाहे आपसे जूनियर पोस्ट का कोई व्यक्ति हो। ऐसे यहाँ पे स्टेटमेंट्स है, हियर इज द स्टेटमेंट्स, वी शुड ट्रीट आवर हेल्पर्स, हमारे सहयोगियों, अपने सहयोगियों को हमें विथ काइंडनेस, काइंडनेस दयालुता के भाव से, या काइंडनेस मतलब सरलता के भाव से। यह हियर इज द स्टेटमेंट्स, वी शुड ट्रीट आवर हेल्पर्स विथ काइंडनेस, हमें अपने हेल्पर्स जो वर्कर्स होते हैं जिनको हम कार्य के लिए लगाते हैं, या फिर जो हमारे जूनियर पोस्ट के पर्सन्स हैं, suppose that we are the senior in that particular job and some helpers, or you can say कि वो हमारे जूनियर्स हैं, तो उनको, वो हमारे लिए वर्क करते हैं या हमारी संस्था के लिए वर्क करते हैं, तो वो हमारे हेल्पर्स हुए, हम लोगों के हेल्प कर रहे हैं, तो उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? काइंडनेस का, सरल व्यवहार करना चाहिए, कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। वी शुड ट्रीट आवर हेल्पर्स विथ काइंडनेस, हमें अपने सहयोगियों को कैसा, सहयोगियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? काइंडनेस, सरलता का व्यवहार करना चाहिए। वी शुड ट्रीट आवर हेल्पर्स विथ काइंडनेस, हमें अपने सहयोगियों के साथ सरलता का व्यवहार करना चाहिए। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स?
वी शुड ट्रीट आवर हेल्पर्स, हमें अपने सहयोगियों के साथ सरलता से व्यवहार करना चाहिए, कठोरता से नहीं सरलता से व्यवहार करना चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली ट्रू। देन हियर राइट डाउन ट्रू। Okay students, I hope all of you understood about all these questions answer. Previously I have discussed fill in the blanks. Here is the true and false statements. Let's revise. Gandhi ji used to say that every person should do every kind of work. गांधी जी प्राय ये कहा करते थे, या गांधी जी यूज्ड टू से, गांधी जी ये कहा करते थे that every person should do every kind of work. हर लोगों को हर प्रकार का काम करना चाहिए। ये ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड इज बार्बर वॉज हैप्पीली रेडी टू कट्स भीम्स हेयर। बार्बर जो है हैप्पीली खुशी खुशी कट्स भीम के हेयर को कट करने के लिए तैयार हो गया था। दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग। हियर इज ए फॉल्स, यू मस्ट बी राइट डाउन फॉल्स। थर्ड, इट इज आवर ड्यूटी टू कीप आवर हाउस एंड सराउंडिंग्स क्लीन। ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने घरों को और अपने अगल बगल के प्लेस को, सराउंडिंग्स को क्लीन रखें, साफ रखें। दिस स्टेटमेंट इज टोटली ट्रू। एंड फोर्थ इज नो वर्क इज इंफीरियर। कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। एंड फिफ्थ इज वी शुड ट्रीट आवर हेल्पर्स। हमें अपने सहयोगियों के साथ विद कौन सा व्यवहार करना चाहिए? काइंडनेस का, सरलता का व्यवहार करना चाहिए। ट्रू। हियर इज द स्टेटमेंट इज ट्रू। सो आई होप ऑल ऑफ यू बी अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट्स, watch this video. I must be sure you get more learning, and thank you for watching my previous video and giving such a nice comments also. So students, watch my full video part 3 chapter number 16. So I hope you must be understood and getting more understanding level. So thank you so much. Have a great day.